make online notes. So I started making online notes. Then I was like कि नहीं online नहीं हो रहा है. Evernote and OneNote मुझे सूट नहीं कर रहा है. Then some topper said कि नहीं मैं तो offline notes बनाती थी, and then क्योंकि उसमें handwritten notes होते हैं तो your attention power increases, and at the very same time it helps you in answer writing. Then I started making offline notes, and then I realized कि नहीं offline में तो बहुत ज़्यादा time जा रहा है. So my 15-20 days were like when I started my preparation, I was all in confusion. So I can all relate it that what you guys are feeling right now. So I would like to start with giving a broad timeline to you. You have enough time, and if you utilize it very judiciously, very mindfully, then I think it's more than enough to clear in this attempt, your first attempt, if you have the right guidance in the right direction. So if you start from like, you all are Vision IA students, right? So if you start from like May or June, so from June till December, you should have the strategy of completing your optional paper at least. Optional is a very deciding factor in giving you a rank. Without good score in optional, you cannot get a rank, your preferred service or anything. So your first strategy should be that till December, you complete your optional, and at the very same time, your time division should be like 70% time you should give to your optional, and then 30% time to the other GS papers. And in GS papers as well, you should prioritize. For example, ethics paper is something that you should score good marks in that. And it is something that efforts are not that much needed in ethics paper to score well, if we compare it with the GS1 or GS2, wherein we have to cover a lot of subjects. So your strategy should be that till December. And also, I would like to add one more thing, that when I was just sitting here, I just noticed that you all are just listening and you're not noting something down. So what will happen is that after attending some 15-20 toppers talks, you will not remember anything, and then everything will be in a hodgepodge situation. Sab khichdi pak chuka hoga us time tak, and then you will be at the same stage only, and then you will also be confused कि अब करना क्या है. सब toppers talks भी attend कर ली, लेकिन still you don't have that direction. So whosoever you are listening to, please note something down, and then after you are done with all these talks, find some common points जो सब कर रहे हैं. So there is a way to clear this exam that I've realized this. This was my 4th attempt. I could not clear my prelims in my earlier 3 attempts. And then after my 3rd attempt, I realized that I am making some mistake. कुछ तो गलत है. People are clearing prelims in 3-4 days only. And despite studying so much, my knowledge base was never an issue in clearing prelims. So I was adopting a very wrong strategy. So I realized this. कैसे जब अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया आपने, अभी आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, एंड देन आफ्टर 15-20 दिन के बाद, 1 महीने बाद के बाद, यू विल बी इन अ सेम सिचुएशन कि अब करना क्या है. So please, जो भी common points then you find, incorporate all those points in your strategy. This is the best way to attend if you are giving your 1 hour or 2 hour over here. So please note something down. Everybody who is saying anything, क्योंकि सबने एग्जाम क्लियर किया है, तो कुछ सबने पाथ को फॉलो किया है. So please note them down, and जो भी कॉमन चीजें लगे वो अडॉप्ट कीजिए. Second thing is yes, 70% time to your optional, 30% time to your GS papers. January is the time, I think, when you should segregate your studies into prelims mode. Gone are those days when people used to study for 20 days. I heard when I was preparing, so there was this one topper, I would not name her, and she said that she's just studied for 20 days in her first attempt for prelims, and she just cleared it like anything. Prelims is not that easy stage. It is the most unpredictable stage. And in fact, after 2023 paper, we have all realized this, how unpredictable, vague this exam has become. So you need to give, equal respect to prelims to clear it. I could not clear it in my 3 attempts, but I realized that it is the toughest stage. At least it was the toughest stage for me. So January is the time that you should segregate your studies. You should stop preparing for mains, and you should only give your time to prelims paper. So I have noticed that there are 4 pillars to prelims paper. Number 1 is the static resources. There are some very fixed resources that you have to follow. आपको different sources नहीं follow करने. For example, if I am reading Lakshmikant and the person sitting next to you or your friend might be, he or she might be reading DD Basu. So वो एक FOMO डाल देता है कि यार उसको तो कुछ ज़्यादा ही information है, हमारे पास तो नहीं है. Don't follow anyone blindly over here. Stick to one resource. Everybody, जिसने भी exam clear किया है, I think सबने ये चीज़ बोली है. आप चाहे 5 साल पहले टॉपर स्टॉक उठा के देख लो या 3 साल पहले देख लो. Everybody has followed the very fixed resources. और एक सोर्स को फॉलो करो एंड रिवाइज इट n number of times. n number of times is not fixed, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में वो किस रीडिंग तक जा रहे हैं. As far as my studies were concerned,
मैंने लक्ष्मीकांत को 15-20 बार पढ़ा होगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट exaggerating things over here. Similarly, Spectrum. Similarly, for economy, I followed Vivek Singh, जो सर है. I think his book is really nice and helped me in clearing my concepts for economy. सो एक सोर्स को फिक्स कीजिए. आप जैसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ विजन आईएएस के, तो जो भी आपका कोचिंग मटेरियल है या जो टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, प्लीज स्टिक टू दैट. एंड देयर इज अ वे ऑल्सो कि आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको आज फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ाया, तो फंडामेंटल राइट्स इज अ बिग चैप्टर. वो 3-4 दिन लगते हैं उसको कवर करने में टीचर्स को. तो आज आर्टिकल 21 पढ़ाया आपको. सो इट इज योर ड्यूटी टू गो होम, अपने नोट्स को रिवाइज करना, एंड एट द वेरी सेम टाइम लक्ष्मीकांत खोलो या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको खोलो एंड वहीं से कंप्लीट कर लो. Do that very very religiously if you want to clear it in your very first attempt. See, you will require focus and dedicated strategy to clear this exam. So you are very privileged enough that you are having your teachers over here to clear your doubts and everything. So एक strategy अपने पास रखो कि जो भी teachers यहाँ पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट वही उसी चीज को जाके आपको अपनी बुक से कवर करना है. अदरवाइज क्या होगा कि आप दिसंबर फरवरी तक आप अपना कोर्स करेंगे एंड देन फरवरी के बाद आप ये बुक्स उठानी शुरू करेंगे. एंड देन जब बुक्स उठाएंगे सो यू विल फील वेरी फ्रेश कि ये तो क्या ही है, हम जो पढ़ा था वो तो भूल ही गए हम लोग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी दिन जाके कंप्लीट कीजिए उसको. ऐसे करके जब आप अपने फरवरी तक जाएंगे तो आपका 2-3 बार आपका कोर्स अपने आप कवर हो चुका होगा. एक बार टीचर्स के थ्रू एंड 1-2 बार आपने जो रिवाइज किया होगा उन नोट्स को एंड जो बेसिक बुक्स आपने कवर की होंगी. सो स्टैटिक रिसोर्सेज इज समथिंग दैट विल हेल्प यू क्लियर प्रीलिम्स. हमारे साथ क्या होता है दैट वी ऑल फोकस ऑन करंट अफेयर्स अ लॉट. करंट अफेयर्स इज सो वास्ट दैट आई थिंक यू विल गो मैड एट इट अगर आपने ज्यादा फोकस किया. सो वी शुड नो वेयर टू स्टॉप इन करंट अफेयर्स. For example, in my case, I was very religiously following the Hindu newspaper. I never skipped the newspaper. And secondly, I used to read monthly magazine, just a casual reading. I never made notes out of the monthly magazine or something. क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, प्रीलिम्स को सेपरेट करना, मेंस को सेपरेट करना, एंड देन उस चीज़ों को. So just to make myself aware, I used to read monthly magazines. I never made notes out of it, and I used to rely on the PT and the mains 365. क्योंकि प्रीलिम्स में जब आपको करना है तो जो PT दैट इज वेरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, वही आपको चीजें याद करनी है, वही चीजें आपको करनी है. और एक और चीज है कि सब बोलते हैं कि PT 365 से आज आजकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे. डेफिनेटली ये दिस इज नॉट एन एग्जाम की जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट हाउ इट विल हेल्प इज कि व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट एग्जाम हॉल, प्रीलिम्स वाले एग्जाम हॉल में, एंड आप बैठे हैं, आपकी साइड वाला कोई कैंडिडेट बैठा है, सो यू शुड हैव ब्रॉडर एंड वाइडर नॉलेज दैट ही और शी हैज, ताकि आप वो नॉलेज को यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को. एलिमिनेशन के बिना प्रीलिम्स इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर. देयर वाज दिस हाइप अराउंड कि 2023 में तो एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, बट आई डोंट थिंक सो दैट वाज ट्रू. इवन इन दिस प्रीलिम्स देयर वर 10 to 15 क्वेश्चंस जो अगर आपने PYQ एनालिसिस किया होता या कुछ भी किया होता तो अच्छे से देखा होता, एलिमिनेशन ट्रिक्स थोड़ी देखी होगी तो आप इजीली कर लेते उस चीज को. एंड GS पेपर 1 कट ऑफ वाज जस्ट 75 मार्क्स दिस ईयर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को पढ़ें बट रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ें. तो monthly magazines आप casual reading कर सकते हैं, at least I did that, and relied thoroughly on PT and mains 365. Then number 3rd pillar is that the previous year question papers. PYQ, I think I cannot emphasize enough on the importance of PYQs. PYQs are so important that you have to analyze it, not just कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर पता लगा लिया कि हाँ ये आंसर, एंड देन यू कैन गो अहेड. नो, इट्स नॉट द राइट वे टू डू द PYQ एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल, पहले काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें जो ऑप्शंस है वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली बना दिया गया है. इनफैक्ट 2-3 प्रीलिम्स से तो डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको 2 सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने PYQ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है अच्छे से. तो PYQ एनालिसिस इज समथिंग दैट आई थिंक यू शुड फोकस, मतलब इतना ज़्यादा दैट बहुत ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए. एंड एक तो ऑप्शन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. एक सेकंड थिंग इज दैट आपको थीम्स पता चलते हैं जब आप PYQ को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुद्धिज्म जैनिज्म से हर साल क्वेश्चन आता है. इस साल भी देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म. नेक्स्ट थिंग, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ एनालिसिस करोगे. अभी ऑल आर बिगनर्स, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार कितना सब कुछ है, बट इट्स नॉट द राइट वे टू थिंक लाइक दैट. अगर आपने एक बार सिलेबस देखा है, सिलेबस शुड बी योर बाइबल. आई मीन जस्ट पेस्ट इट जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, एंड जस्ट यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट कि 3 दिन तक लेके बैठे हैं रट्टा मारे हैं सिलेबस का. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू जस्ट सी द सिलेबस डेली, ऑन अ डेली बेसिस. जस्ट 15 मिनट्स कभी भी जब आपके पास टाइम लगता है तो सिलेबस को जस्ट आपको एक बार देखना है. उससे हेल्प क्या मिलेगी? एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, इन द सेंस दैट
जो इरेलीवेंट न्यूज होती है न्यूज़पेपर में आप वो नहीं पढ़ेंगे, तो आपका माइंड दैट सबकॉन्शियसली काम करना शुरू कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स में देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन एथिक्स. सो व्हाट विल हैपन इज इफ यू आर अवेयर अबाउट द सिलेबस एंड इफ देयर इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो इशू बहुत ज्यादा चल रहा था. अगर आपने एथिक्स के PYQs एंड एथिक्स के सिलेबस देखा है, सो यू विल रियलाइज कि मैं इसको इन्वायरमेंटल एथिक्स एग्जाम्पल में आई विल डेफिनेटली इंक्लूड इट. Similarly, there was this मुंबई में there was this issue that was going on related to some cutting down of trees. तो आपको वो एकदम से क्लिक करेगा दिमाग पे कि आई कैन यूज दिस एग्जाम्पल एज माई एथिक्स. और एथिक्स में आप तभी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जब आप एग्जाम्पल्स को यूज करें. थियोरी विल नेवर गेट यू मार्क्स इन एथिक्स. It's only the value addition, the examples, the current affairs examples that you will use that will help you. और वो चीज़ आती कैसे है? We are not some superhumans या कुछ aliens यहाँ पर है. हम 10 दिन पहले तक ऐसे ही थे. I mean, we all were very scared कि कैसे होगा या क्या होगा कि सब कुछ. But the thing is that there was a structure in our preparation. So, like I told you in the ethics examples. Similarly, कोई भी पर्सनालिटी न्यूज आती है, जैसे देयर वाज दिस पद्माश्री अवार्ड्स वगैरह हुए, तो वहां से आप डायरेक्टली एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स में. सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल दीस थिंग्स इज दैट यू हैव टू एनालाइज द PYQs वेरी वेरी थॉरली. आई मीन मेक इट अ हैबिट और अ रिचुअल कि 15 मिनट आपको एक तो सिलेबस देखना है एंड आपको हाफ एन आवर PYQs देखने ही देखने हैं. एंड एक बार PYQ देखने से कुछ नहीं होता है. जब आप व्हेन यू see them on a regular basis, तो 5-6 time readings के बाद you get those nuanced understanding of each and every PYQ. आपको लगता था कि अरे यार, जैसे फॉर एग्जांपल जिसने भी 2023 का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, तो वो आके फिर रियलाइज करता है जब ऐसे ठंडे दिमाग से सोचता है अरे यार ये तो मैं ऐसे भी कर सकता था, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग चाहिए ही नहीं था अगर इफ आई वाज काम इनफ या मैंने PYQ एनालिसिस किया होता. आई बिलीव दैट माई सेकंड अटेम्प्ट वाज माई बेस्ट अटेम्प्ट इन टर्म्स ऑफ माई प्रिपरेशन एंड द नॉलेज बेस दैट आई हैड गैदर्ड. हाउएवर आई कुड नॉट क्लियर दैट प्रीलिम्स. आई मिस्ड दैट प्रीलिम्स बाय 5 marks. Number one mistake was that I just attempted 71 questions. I did not listen to anybody. I was like, नहीं मैं तो accuracy पे focus करूँगी. I will not take risk in the prelims. And I did not analyze PYQs enough. So जब आके मैंने देखा कि मैंने क्या क्या mistakes की, despite having knowledge, static books, CA and everything I have done, but still मेरा clear नहीं हो रहा. तो देन आई एनालाइज एंड देन मैंने देखा एंड देन मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है एलिमिनेशन की, ये ऐसे क्वेश्चन हो सकता था if you had analyzed the PYQs enough. So I realized that this was the biggest mistake that anybody can do, and you cannot clear prelims examination अगर आपने PYQs analyze नहीं किए हैं. It's very very important and you will realize it. अगर आप अभी नहीं करेंगे, आप अपना एक अटेम्प्ट देने के बाद realize करेंगे कि क्या importance है PYQs की. And number 4 pillar जो prelims का है, that is the mock tests. There are people जो 100+ ऐसे mocks attempt करते हैं. It's all very scary. जब हम सुनते हैं कि 100 कैसे होंगे, even I used to be scared when somebody used to tell me कि they have solved 100 or 110 question papers. क्योंकि solve करना is not just, I mean, mock test को solve करना सब कुछ नहीं होता है. It is just one step. I believe that's just 40% of the thing. उसके बाद का जो step होता है वो analysis part जो होता है कि whenever you are solving a mock test, so you have to make a register or something and you have to see things कि आपके questions कहाँ गलत हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको वहां पर रिवाइज करने की जरूरत है. यू हैव नॉट रेड योर सोर्स प्रॉपरली, सो यू नीड टू रिवाइज दैट थिंग. नंबर 2 मिस्टेक दैट वी डू इज कि हम ऐसी ब्लाइंड गेसेस ले लेते हैं कभी कभी. यू हैव टू ऑल टेस्ट इट इन योर मॉक टेस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ भी ब्लाइंड गेस, तो आपको रियलाइज तभी होगा जब आप एनालिसिस करेंगे कि मैंने क्वेश्चन क्यों गलत किया. सो जस्ट मेक दैट रजिस्टर एंड नोटबुक और वट एवर कि एनालाइज करने के लिए कि कहाँ कहाँ हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. एंड थर्ड इज रीडिंग द सोल्यूशन पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, जो 40 पेजेस, विजन का आई थिंक 32 to 40 पेजेस होता है आराम से. एंड उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो 1 घंटे में एनालिसिस कर लेते हैं. हाउएवर मैं 3-4 घंटे मुझे लगते थे उसको प्रॉपरली सोल्यूशन को पढ़ने में एंड वैल्यू एडिशन करने में. मेरा सिर्फ एक मोटिव रहता था कि जब मैं प्रीलिम्स में बैठूं तो मेरा नॉलेज बेस इतना हो कि मैं एलिमिनेट कर पाऊँ ऑप्शंस को. My focus was just on elimination. There are 3 kind of questions, काफी सारे kind of questions होते हैं prelims में. एक तो 30 to 35 questions will be जो आपको direct आते होंगे. If you are a serious aspirant and you have read your sources properly, for example static resources या current affairs sources अगर आपने पढ़े होंगे, 30 to 35 questions will be like कि जो आप easily कर लेंगे. लेकिन उसके गेम एक्चुअली उसके बाद स्टार्ट होता है. कट ऑफ आपका उसके बाद क्लियर, जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वो क्लियर करवाते हैं. तो 60 to 65 क्वेश्चंस अब आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं या देखने कैसे हैं आपको, तो वो आपकी एलिमिनेशन ट्रिक्स या आपने जो वेग नॉलेज पढ़ी होगी. इफ यू हैव बीन अ कंसिस्टेंट एंड अ रेगुलर रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा यार मैंने तो पूरा साल पढ़ा है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं भी न्यूज़ में. यू विल एलिमिनेट दैट ऑप्शन. कुछ आपने PYQ एनालिसिस देखा होगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जनरली गलत होती है,
फॉर एग्जाम्पल इस बार भी देवर आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस थे जो आंख बंद करके भी कर सकते थे. देवर सम वाले क्वेश्चंस, नन एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट्स थे काफी. इस बार ऑप्शंस का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट्स का पैटर्न तो वही है ना. द पेपर जो सेटर है वो तो सिमिलर कॉन्सेप्ट को एंड सिमिलर चीज पैटर्न को लगा के वो ऑप्शंस बना रहे हैं ना. आई मीन द स्टेटमेंट्स. तो आपको वो स्टेटमेंट समझनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि किस टाइप से वो क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे वो स्टेटमेंट्स को गलत करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट चैप्टर है. अगर मुझे वहां से एक क्वेश्चन फॉर्म करना है तो एग्जामिनर के पास भी तो कुछ लिखा हुआ होगा ना, वहां से वो क्वेश्चंस बनाएंगे एंड उनको उस स्टेटमेंट को गलत करना है. तो थिंक लाइक दैट कि वो कैसे गलत कर सकते हैं. एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे अलग से भगवान आके कुछ देके जाएंगे. जब यू रियलाइज, जब यू रीड द PYQs, एनालाइज इट 5-6 बार, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार ऐसे होता है. एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट. फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स या माइंडसेट पढ़ना. बट जब आप PYQ को एक लेवल के बाद आई मीन पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीजें दिखने लग जाती है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. सो मॉक टेस्ट, PYQs, लिमिटेड रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल द स्टैटिक रिसोर्सेज जो भी है एंड द करंट अफेयर्स जो है लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जो भी साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, द मार्केट इज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ मटेरियल्स ऑफ करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस. हमें क्या लगता है कि हमने विजन की पढ़ ली, पर हमें वो फोमो होता है कि नहीं नहीं यार, आई मीन कि मेरा फ्रेंड तो कुछ और पढ़ रहा है या कुछ और उसने बता दिया कि नहीं नहीं मैं तो इनसाइट्स का कर रहा हूँ या कुछ और, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम तो कहीं पीछे छूट रहे हैं. सो वी हैव टू रीड दैट इनफ. तो हम सेकेंड सोर्स फॉलो करना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे में एक्चुअली कुछ एक भी ढंग से नहीं हो पाता है. एंड दैट इज द की टू क्लियर प्रीलिम्स कि अपने रिसोर्सेज को प्लीज लिमिट कीजिए अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो. सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रीलिम्स. आई थिंक अगर आपको कुछ पूछना है प्रीलिम्स रिलेटेड तो आई थिंक यू कैन आस्क, बिकॉज आई थिंक कि प्रीलिम्स इज समथिंग दैट सबको डराता है. प्रीलिम्स स्टेज तो है, मुझे भी. दिस ईयर आई अटेम्प्टेड 94 क्वेश्चंस. यस, in my second attempt, first attempt तो I just gave, जैसे सब बोलते हैं कि देखने के लिए, and that was the biggest mistake that I did. I just did Lakshmikant and उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, but just to see that paper मैंने attempt दे दिया. ये attempt का importance आप उससे जाके पूछे जिसका last attempt था, and unfortunately he or she could not clear it. They will tell you the importance of one attempt. ऑल्सो क्या होता है जनरल कैंडिडेट्स के साथ कि जब 3 अटेम्प्ट होते हैं ना, तो वी थिंक कि अभी तो बहुत अटेम्प्ट है, एक ना एक अटेम्प्ट में तो हो ही जाना है हमारा. बट जब थर्ड अटेम्प्ट खत्म होता है ना, यू स्टार्ट फीलिंग द हीट ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आपके पास है. तो फोर्थ अटेम्प्ट में ऐसा लगता है कि वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि अब तो सिर्फ 3 बचे हैं, 2 बचे. सो प्लीज सबसे पहली चीज तो अपना जो अटेम्प्ट दे रहे हैं प्लीज ऐसे वेस्ट मत कीजिए जस्ट देखने के लिए. देखने हैं तो बाहर एग्जाम के बाद ही पेपर आ जाता है, खुद आप चेक कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज सेकेंड अटेम्प्ट. व्हेन आई गेव माई सेकेंड अटेम्प्ट, मैंने सिर्फ 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. I was focusing on accuracy and मैं बड़ा safe खेल रही थी उस prelims में, and I missed the cutoff. Third attempt I did the same mistake. I just attempted 78 questions, and then after third attempt I realized that why am I doing this? Why am I not taking risk? या मैं इतनी risk averse क्यों हो रही हूँ? And then I analyzed, मैंने वो mocks में apply किए and मैंने realize किया that I generally attempt 85 to 90 के question जब मेरा बेस्ट रेंज होती है, जब आई कैन मैक्सिमाइज माई स्कोर टू अबव 100 और समथिंग. बट जब मैं प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में गई एंड वी रियलाइज दैट द पेपर इज वेरी वेग, नोबडी नोज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बड़े डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे. एट दैट मोमेंट आई डिसाइड कि आई हैव टू गो 90+ एनी हाउ इफ आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस प्रीलिम्स एग्जाम. सो आई अटेम्प्टेड 94 क्वेश्चन. सो ऑल्सो ये आप मॉक टेस्ट में प्लीज एक बार देख लीजिए कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है. काफी लोगों का होता है कि उनके नेगेटिव मार्किंग बड़ी हो जाती है. सो प्लीज चेक योरसेल्फ कि आप एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करते हैं या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे. आई चेंज्ड माय स्ट्रैटेजी टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड आई कुड क्लियर इट. इस बार मेरे प्रीलिम्स में 98 मार्क्स है, वेल अबव द कट ऑफ, एंड आई वाज वेरी श्योर कि मेरा प्रीलिम्स आई थिंक क्योंकि मेरे 100 रेंज में आ रहे थे जब मैंने काफी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया. एंड दिस वाज द स्ट्रैटेजी या चेंज जो मैंने किया, दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. एंड मेन्स एंड इंटरव्यू तो मेरा फर्स्ट ही था, सो दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वाज फोकस्ड ऑन माय मेन्स प्रिपरेशन. तो मेंस मैंने कभी नहीं छोड़ा एंड प्रीलिम्स में मैंने ये स्ट्रैटेजी चेंज की थी इस बार. And in aspect of previous year analysis, what special you did this year? Previous year questions में what I did was earlier this was also the mistake that I was doing कि मैं PYQ को analysis अच्छे से नहीं कर रही थी. I was just seeing कि हाँ ये question है, ये answer है, and I was in a testing mode कि मेरे कितने marks आ रहे हैं. However इस साल 2011 onwards तो very judiciously, very religiously मैंने हर एक question को उठाया. मैंने उसमें patterns identify किए कि किस टाइप की statements गलत होती है. आप देखोगे कि वो डेट को चेंज कर देते हैं या फिर कोई एक प्लेस है उसको चेंज कर देते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर देम टू मेक द स्टेटमेंट. तो आपको जब आप
PYQs को देखोगे तभी आपको समझ आने वाला है. सेकेंड थिंग इज इसी उसमें मैंने रियलाइज किया कि वो ऑप्शंस कैसे फ्रेम करते हैं. इस बार दो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आई एक्चुअल उसमें. हाउएवर इट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस जब मैं प्रीलिम्स एग्जाम हॉल में एंटर कर रही थी दैट आई हैड डन इनफ. एंड आई थिंक इससे ज्यादा तो मुझसे नॉलेज बेस इंक्रीज नहीं होगी. दिस वाज द लिमिट दैट आई कुड डू. And this is the thing that I have to perform my best in this prelims. So आप तो एक तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकंड थिंग इज आई आइडेंटिफाइड थीम्स और मैंने ऐसे सेपरेट नोट्स बनाए थे. जैसे प्रीलिम्स में स्टैटिक बुक्स के अलावा भी आपको बहुत कुछ करना होता है. जैसे नेशनल पार्क्स आपको करने होते हैं, वेटलैंड्स का क्वेश्चन हमेशा आता है तो आपको वो प्रिपेयर करने होते हैं. सिमिलरली सेपरेट नोट्स ऑन द रिवर्स आपको बनाने पड़ते हैं. ऐसे जो मिसलेनियस चीजें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यू वुड नोटिस व्हेन यू विल एनालाइज अ PYQs कि इंटरनेशनल